Hi everyone, I hope that you all are good and fine. So in today's session, we will see the introduction of this chapter, lines and angles. Okay, so starting from the very first topic, students, here you are having the very first topic as related angles. Okay, and in related angles, we are having the very first type of angle is complementary angles. Okay, so here we will start with complementary angle. Complementary angles. See students, here it is written angles, means it is not one angle. Okay, it is more than angle, means this relation is between two angles. This relation is between two angles, or you can say pair of angles. So when a pair of angles sum, जब किसी भी एंगल्स का सम जो है वो 90 डिग्री होता है देन सच टाइप ऑफ एंगल्स आर कैटेगराइज्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. लाइक सपोज हियर वन एंगल आई एम हैविंग एज 45 डिग्री एंड अनदर एंगल again having 45 degree. So these two angles will be said as complementary angles. Okay, so complementary angles, such type of pairs of angles are said to be complementary angles whose sum is equal to 90 degree. Okay, now next type of angles are supplementary angles, students. Okay, next type of angles are supplementary angles. Supplementary angles. Now here what is happening, here the relation is again between pair of angles only, है ना. यहाँ पे भी दो ही एंगल होगा, but the difference is that here the sum of the angles will be equal to 180 degree. In previous case, that is in case of complementary, we were having the sum equal to 90 degree, but in this case we will have the sum equals to 180 degree. Suppose here we are having two angles. Okay, this one 90 degree, this one 90 degree. Okay, so we know that their sum is equal to, or if we will add them, then it is equal to 180 degree. So such type of angles are known as supplementary angles. Okay, now next topic is adjacent angles, students. Okay, now what do you mean by adjacent? Adjacent का मतलब होता है लग कर या सटा हुआ. ठीक है, like suppose here we are having two angles. Here we are having two angles. Okay, now this arm is common, right students, for this angle and this angle. ये लाइन जो है या आर्म बोलो, ये दोनों एंगल के लिए कॉमन है. ठीक है, तो ये दोनों एंगल, सपोज दिस इज 30 डिग्री, सो दिस बोथ द एंगल्स विल बी कैटेगराइज्ड एज एडजेसेंट एंगल. So what I told you, what basically I want to tell you, when one arm is common, जब एक आर्म या एक लाइन या एक साइड कुछ भी कॉमन होगा, ठीक है, तो ही वहाँ पे एडजेसेंट एंगल कहलाएगा वो. ठीक है, लाइक हियर इन केस इफ सपोज अगेन आई ड्रॉ हियर वन लाइन. ओके, सो दिस लाइन विल बी, this arm will be common for this angle and this angle, so both the angles will be categorized as adjacent angles. मतलब सटा हुआ होना चाहिए एक दूसरे से. ठीक है, लग कर होना चाहिए. now next one is linear pair. okay, next one is linear pair, students. Linear pair. Now what do you mean by linear pair? See, application of these all things will be coming very frequently when you will solve the numericals of the exercise. So try to understand all the topics here only. All the topics are very important. Let it be complementary angle, supplementary angle, adjacent angles, or linear pair. So here when the sum of two angles is equal to 180 degree, when the sum of two angles is equal to 180 degree, then at that time I told you that it will be supplementary, right? Now here when a straight line is there, okay, when a straight line, so its measure is always how much, students? 180 degree, and it is known as linear pair. Okay, like suppose here I am having one straight line and if I draw one line here, so formation of two angles took place. दो एंगल यहाँ पे बन गया, एक एंगल ये सपोज एंगल 1 एंड एक एंगल ये एंगल 2.
तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन हमें यहाँ दिख रहा है ये स्टूडेंट्स, है ना। तो ये स्ट्रेट लाइन पे ही दोनों भी एंगल का फॉर्मेशन हुआ है ना। तो यहाँ पे लीनियर पेयर के जरिए हम लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज नथिंग बट नोन एज लीनियर पेयर एंड लेट मी टेल यू दैट दिस इज नोन एज एक्सियम। ठीक है, हमें मैथमेटिक्स में 3-4 तरह की चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, जैसे कि एक्सियम, थ्योरम, पोस्टुलेट्स, कोरोलरी, है ना। तो एक्सियम्स वो होते हैं स्टूडेंट्स जिनको प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि लीनियर पेयर, है ना। और some days before I told you when I was solving the numericals of the exercise that angle sum property of triangle is equal to 180 degree। तो ये एक्सियम नहीं है, मतलब क्या बोला मैंने कि कोई भी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो इसे प्रूव किया जा सकता है और हमें प्रूव करना पड़ेगा कि कैसे होता है। ठीक है, इन हायर स्टडी। ठीक है, बट दिस इज एक्सियम, दिस लीनियर पेयर इज एक्सियम, मतलब इसे प्रूव करने की जरूरत नहीं। दिस इज होल एंड सोल एक्सेप्टेड, लाइक सपोज एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, इट इज एक्सेप्टेड, नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, यू कैन फील, है ना। सो सिमिलरली हियर दिस लीनियर पेयर नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, it is accepted that linear pair means a straight line equal measures always 180 degree। ठीक है, now moving to and all those topics that I told you about theorem, then postulates, corollary, these all needs to be proved, but axioms not need to be proved. Like axioms, in axioms what are the things are coming, like a straight line, that is linear pair, then a circle always or circle, its measure, the angle measurement of a circle is 360 degree. These all things are axioms, है ना, and accepted. Now next angle is coming vertically opposite angles. Next topic is vertically opposite angles, है ना। Now what are vertically opposite angles? See students, here when two lines are intersecting, like suppose here one line is there, another line is this, okay, so when they are intersecting at some point, then formation of vertically opposite angles, यहाँ पे pair of two vertically opposite angles होता है। ठीक है, जैसे कि सपोज मान लो कि ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3 और ये एंगल 4, यहाँ पे 4 एंगल बना हुआ है, हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये एंगल 1 एंड एंगल 3 आर नोन एज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, vertically opposite angles. Similarly students, angle 2 and angle 4 are known as vertically opposite angles. तो कहीं पे भी दो लाइन जब मिलते हैं तो आमने सामने का जो एंगल बनता है उसे हम vertically opposite angles कहते हैं। ठीक है, now your next topic students, pair of lines। क्या कहता है ये पेयर ऑफ लाइन्स? पेयर मतलब समझते हो आप, जोड़े में होना। ठीक है, अब पेयर ऑफ लाइन्स जो होता है वो किस किस तरह का लाइन्स होता है। ठीक है, लाइक जैसे कि एक तो हमारा पेयर ऑफ लाइन हो जाएगा इंटरसेक्टिंग लाइन, जो कि मैं अभी जस्ट बताया, व्हेन टू लाइन्स विल इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, और एक ऐसा लाइन होगा कि वो इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं, लाइक सपोज दीज टू लाइन्स, लाइन एल, लाइन एम, दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग एट एनी पॉइंट, है ना, ये कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो दो तरह के टाइप्स ऑफ और पेयर्स ऑफ लाइंस होते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड अनदर वन इज पैरेलल लाइन। व्हाट इज पैरेलल लाइन स्टूडेंट्स? ये इंटरसेक्टिंग लाइन तो समझ में आ गया, जो एक दूसरे को कट करते हैं या मीट करते हैं एक दूसरे को कहीं पे भी जाकर। ठीक है, तो हम उसे इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। पैरेलल लाइन हम उसे कहते हैं जो एक दूसरे को कहीं पे भी ना मिले। इफ़ यू विल increase them from any end, suppose this end or this end, okay, so they are not going to meet even if you will increase them up to infinity। infinity मतलब अनंत तक भी अगर आप उसे बढ़ाते हो तो वो कहीं पे नहीं मिलेगा अनंत तक। means parallel lines are pair of those lines which do not meet up to infinity।
ठीक है, ये पैरेलल लाइन कहलाता है। ठीक है, नाउ हियर इफ वन लाइन इज कटिंग दीज टू पैरेलल लाइन्स देन दिस लाइन इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन। ओके, नाउ इसमें क्या होता है, यहाँ पे डिफरेंट एंगल्स का फॉर्मेशन होता है। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू इन डिटेल विच टाइप ऑफ एंगल्स आर फॉर्म्ड हियर, है ना। ठीक, सपोज सी हियर, सपोज लाइन एल इज ट्रांसवर्सल, ठीक है, एंड लाइन एम एंड सो आई विल शो यू हियर समवट बिगर फिगर, है ना। सपोज दिस इज लाइन एल विच इज पैरेलल टू लाइन एम, ठीक है। नाउ सपोज दिस इज द ट्रांसवर्सल लाइन एल, है ना। सो इफ दिस इज कटिंग दीज टू पैरेलल लाइन्स स्टूडेंट्स, देन फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट 8 एंगल्स आर possible, means happening. Okay, so here suppose this is angle 1, this is angle 2, this is angle 3, this is angle 4. Similarly this is angle 5, this is 6, this is 7 and this is 8, or you can number it in your way also. आप अपने हिसाब से भी इसे नंबर कर सकते हो। तो कहता है कि अगर ये दोनों पैरेलल लाइन है एल और एम, और एल ट्रांसवर्सल अगर उसे कट करता है, तो ये जो एंगल्स फॉर्म हुए हैं 8 भी, तो इनमें कुछ रिलेशंस हैं। जैसे कि ये एंगल, मतलब कि एंगल 1 और एंगल 5, ठीक है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाते हैं। एंगल 1 एंड एंगल 5 आर कॉल्ड एज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना। सिमिलरली एंगल 2 और एंगल 6 भी, एंगल 2 और एंगल 6 भी क्या कहलाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सिमिलरली एंगल 4 और एंगल 5, एंगल 4 एंड एंगल 5 विल ऑल्सो बी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। सिमिलरली एंगल 3, एंगल 4 एंड एंगल 8, नॉट एंगल 5, एंगल 8, 4 and 8, angle 3 and 7 also, angle 3 and angle 7 are also called as corresponding angles, है ना। नाउ आपको मैं डिटेल में समझाता हूँ कि corresponding angles क्या कहलाता है, ठीक है। आप न्यूज़ चैनल्स वगैरह सुनते होंगे, देखते होंगे, है ना। तो उस समय क्या बोलता है, जो न्यूज़ रीडर जो स्टूडियो में बैठा होता है, वो क्या बोलता है, नाउ आई वुड लाइक टू कनेक्ट यू टू माई कॉरस्पॉन्डेंस हु इज एट द सिचुएशन और एट द साइट। मतलब क्या बोलना चाहता है वो, मुझे छोड़कर, मतलब एक को छोड़कर आपने दूसरे के पास मैं ले चलता हूँ। तो उसी तरह से यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो, अगर आप इसे पकड़ रहे हैं तो एक को छोड़ देना है, ठीक है, उसके बाद दूसरे को पकड़ना है। मीन्स वन एंगल लिविंग अनदर एंड देन होल्डिंग और कंसिडरिंग द नेक्स्ट। सो दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। सिमिलरली यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो 1 और 5 मैंने लिखा है ना, यहाँ पे देखो 2 लिखा है, 5 को छोड़ दिया, 6 लिखा हूँ। और ये जो रिलेशन है स्टूडेंट्स, ये याद रखना आप कि ट्रांसवर्सल के एक ही साइड पे वैलिड होगा, ठीक है, दोनों साइड पे नहीं जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे एंगल 1 लिए, एंगल 2 को छोड़कर एंगल 8 को नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक ही साइड पे देखो आप, एंगल 1, 2, 5, 6 मैं लिखा हूँ किस में, एंगल 1 और 5 दोनों एक ही साइड पे है ना। एंगल 2 और 6 एक ही साइड पे है। एंगल 4 और 8 उधर का अब लिख रहा हूँ, ठीक है। एंगल 3 और 7 उधर का है, ठीक है। तो ये रिलेशन जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ हमें मिलता है, ठीक है। डोंट ट्राई टू कोरिलेट और मर्ज इनटू अनदर साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। और इसके बाद इसके अपोजिट, इसके बाद स्टूडेंट्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गया ये। नेक्स्ट हमारा मिलता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो ये एंगल 2 एंड एंगल 8, ठीक है, एंगल 8 ये क्या कहलाता है, एंगल 2 और एंगल 8 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहलाता है। कौन कौन एंगल्स, ये एंगल 2 और एंगल 8। सिमिलरली स्टूडेंट्स एंगल 3 और एंगल 5 जो है वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहलाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपने याद रखना है कि ये एंगल 2 प्लस एंगल 5 जो होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। क्या होता है, एंगल 2 + 5 इज ऑलवेज 180 डिग्री।
सिमिलरली स्टूडेंट्स हियर एंगल 3 प्लस एंगल 4, देखो आप जो भी रिलेशन मैं बता रहा हूँ ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ का बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को मैंने इधर से इधर क्रॉस किया, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट मतलब एक के बाद एक, है ना, तो इसे छोड़कर अल्टर कर दिया। ओके, आई मूव टू नेक्स्ट 2 and 8, सिमिलरली 3 and 5. नाउ हियर 2 and 5, 2 plus 5 will be 180 degree. Similarly, angle 3 plus angle 8 will be equal to 180 degree. So these things you have to keep it in your mind very minutely, students, because see, when the lines are parallel, then these are the things that you have to keep. Its corresponding angles are equal, its alternate interior angles are equal, sum of interior angles is equal to 180 degree. Okay, these all things you have to, vertically opposite angles are equal. Which will be vertically opposite angles? I have already explained you. See, this angle 2 and 4 vertically opposite angles, and they will be equal, है ना। See, these all angles are corresponding angles ना, so they will be equal. Angle 1 will be equal to angle 5, angle 2 will be equal to angle 6, angle 4 will be equal to angle 8, angle 3 will be equal to angle 7. पहले मैंने बताया आपको कि corresponding angles होता क्या है, उसके बाद क्या बोल रहा हूँ कि अगर लाइन पैरेलल है तो वो इक्वल होते हैं। Similarly, alternate interior angles will be also equal, है ना, but this one will be only sum of interior angles will be equal to 180 degree, like angle 2 plus angle 5 will be equal to 180 degree. Similarly, angle 3 plus 8 will be equal to 180 degree, and vertically opposite angles will be also equal, like here we are having angle 2 and angle 4 एज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, है ना, तो वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। सिमिलरली एंगल 1 और 3 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, और क्या होगा, अगर लाइन पैरेलल है तो इक्वल होगा, ठीक है। सिमिलरली एंगल 7 और 5 जो है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, दे विल बी इक्वल। सिमिलरली एंगल 6 और 8 भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है जो कि इक्वल होगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अभी तक मैंने क्या बताया कि अगर दो लाइन पैरेलल दिया हुआ है, ठीक है, तो ये चीज़ें होती है, जैसे कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है ना, ये चीज़ें मैंने आपको बताया। तो इसका जस्ट अपोजिट भी होगा, जैसे कि अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो लाइन जो है वो क्या होगा, पैरेलल होगा। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है तो लाइन जो है वो क्या होगा, पैरेलल होगा। अगर सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इक्वल्स टू 180 डिग्री है तो क्या होगा, लाइन पैरेलल होगा, मतलब जस्ट अपोजिट, ठीक है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स, है ना, ये चीज़ें बहुत ही माइन्यूटली आपने ध्यान में रखना है। वाई आई एम टेलिंग यू, बिकॉज सी दिस ऑल थिंग्स आर बेस्ड ऑन योर चैप्टर। ये सारी चीज़ें क्वेश्चन पूछी गई है चैप्टर में, न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। वहाँ पे क्या करना होगा, आपने चेक करना होगा कि लाइन एल और एम पैरेलल है या नहीं। तो आप इन तीनों क्राइटेरिया में से कोई भी एक क्राइटेरिया को अगर सिद्ध कर देते हो, प्रूव कर देते हो, देन यू कैन से दैट लाइन एल विल बी पैरेलल टू लाइन एम। कैसा, जैसे कि सपोज यू प्रूव्ड दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 एंड we can see that these two angles are corresponding angles and hence line L will be parallel to line M. So these things you have to keep it in your mind students before solving the numericals of this exercise, and there is no more topic apart from this. So I hope that you might have understood this much, and I will meet you in the next video solving the numericals of the exercise. Till then, all of you stay safe, take care, bye bye, and thank you for connecting with me.